morning, Mr. Naveen Toshniwal. Welcome to National Wheels India News. We welcome you for the third time because there has been so many technical glitches from our side that we couldn't save the video. So welcome, Mr. Naveen Toshniwal. Thank you for joining us. Yeah, hello, good afternoon. So, sir, what is graphotherapy? Please tell us. See, I'll put it in two parts. First part is called graphoanalysis, where we analyze the character of people through the strokes in the handwriting. Okay. The way we are writing the letters, no, Y, T, A, whatever. And what is the slant of the handwriting, whether the handwriting is small or big. So the analysis of the character is done through the strokes. Now, the second part that is also very important, that is the therapy. After doing the analysis, how actually you can get over your negative traits or utilize your positive traits in a much better way. This is actually called therapy, where you actually make conscious efforts to make some changes in the strokes of the handwriting. And if you practice these small changes for a short while, say 5 minutes a day, for a period of 2 to 3 weeks, you will get the desired results. So this second part is called therapy. Okay, sir. So, sir, how long you have been in this graphotherapy? Is it a profession or a passion for you? और सर आपने कहाँ से सीखा है graphotherapy? Actually, ये तो it's more than 30 years since the time I was in college. I had a lot of interest in the subject और हमारे फादर को भी बहुत इंटरेस्ट था इसमें. उनसे हमने सीखना स्टार्ट किया था sometime in the late 1980s when I was in college. और तब से बहुत इंटरेस्ट है हमको. और फ्री टाइम जब हम लोग के कॉलेज में होता था तो हम लोग बैठ के फ्रेंड्स आपस में डिस्कस किया करते थे एंड वी यूज्ड टू डू द एनालिसिस ऑफ फ्रेंड्स वेरी कैजुअली. उस समय माय फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दे मोटिवेटेड मी कि व्हाई डोंट यू डू इट प्रोफेशनली, क्योंकि तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है. तो देन दैट वाज द टाइम आई स्लोली स्टार्टेड टेकिंग दिस अप एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन. तो तब से चल रहा है. ओके सर. सो सर, जैसे कि आपने कल मेरा एनालिसिस किया था एंड आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय द एनालिसिस क्योंकि वो ज्यादातर एक्यूरेट था. तो सर आप प्लीज हमें थोड़ी टेक्निक्स बताइए कि ये एनालिसिस कैसे होता है. हाँ, आपको हम कुछ चार्ट दिखाते हैं, उससे कुछ आइडिया लगेगा आपको. देखिए, जैसा आपको बताया ना, स्ट्रोक्स और हैंडराइटिंग के स्लांट और ये सबसे देखते हैं. अब देखिए, ये एक चार्ट है, ये स्ट्रेट हैंडराइटिंग डिपिक्ट करता है, ये राइट स्लांट और ये लेफ्ट स्लांट. प्रैक्टिकली देखिए, स्ट्रेट और ये लेफ्ट स्लांट. राइट स्लांट इंडिकेट्स अ पर्सन हु इज वेरी ओके. हाँ, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गया. नो इश्यू सर. Right. So a right slant depicts expressive person, straight shows a composed person, and left slant shows a reserved person. Right. Now, here you see there are some N's and M's. Yes, here sir. you will see pointed on the top. Okay. Sorry, this one. This indicates a person who has got a sharp mind. Here the M's and N's are like inverted V's. You can see ulta V's. These indicate people who have curiosity for learning. Here the M's and N's are having rounded tops, which indicates a person who has a habit of going into details to understand something. Instant grasping इनके नहीं है. Okay. Okay. अब ये T's देखिए थोड़े से. T's are very important in handwriting analysis. This is a T stem and a T bar. Any T bar going towards the top indicates people who are ambitious and goals are well defined. T bar going low indicate people who lack confidence in their abilities. A T bar going to right shows short temper, and T bar going to left shows procrastination, habit of keeping things pending. So this will give you some idea how we are doing the analysis. इसी तरह और बहुत कुछ है, जितना टाइम होगा उसके हिसाब से और बता सकते हैं, but I think we can continue. Yes, sir.
तो सर बच्चों के हैंडराइटिंग पे एनालिसिस हो सकता है? नहीं, एक्चुअली देखिए, जो छोटे बच्चे हैं उनका एनालिसिस नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग उसी तरह लिखते हैं जैसा उनको स्कूल में सिखाया गया है। जी तो सर। अबव अ पर्टिकुलर एज, दैट इज अबव द एज ऑफ 13 और 14, ये एनालिसिस पॉसिबल है, क्योंकि उस एज के बाद हम लोग की हैंडराइटिंग माइंड के हिसाब से डिफाइन हो जाती है। So it is possible to analyze children only above the age of 13 or 14. ओके सर। तो सर देयर इज अ टर्म that I've heard, graphology and a graphotherapy. What is the difference between that? See, graphology is a very basic science where we are actually comparing whether two handwritings are of the same person. It is Okay. widely used by the forensic departments to Mm-hmm. find out whether two handwritings belong to the same person, or Mm-hmm. if someone has done any fraud in the bank by forging signatures. So, for Okay. doing the investigation of that fraud, then graphology is commonly used. Okay. Grapho analysis is one step ahead, that is character analysis through the handwriting. And Okay. graphotherapy is still one step ahead, which is actually improving yourself or your character Okay. by consciously practicing some strokes in the handwriting. Okay. तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेजिबल हैंडराइटिंग, जैसे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग होती है, तो उसमें हम ये एनालिसिस कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली क्या है, राइटिंग इलेजिबल या लेजिबल होने का कैरेक्टर एनालिसिस से कोई लिंक नहीं है। आप सही ओके। कह रहे हैं, डॉक्टर्स के और कई लोगों के हैंडराइटिंग बहुत इलेजिबल होता है। उन्होंने क्या लिखा है वो पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन यस सर। कैरेक्टर एनालिसिस के लिए क्या लिखा है वो पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग ओके। को सिर्फ स्ट्रोक्स देखने हैं कि हम्म। वाई कैसे बना है, टी कैसे बना है, या ओ कैसे बना है, तो वो स्ट्रोक्स तो विजिबल हो ही जाते हैं। जी सर। वेदर राइटिंग इज लेजिबल और इलेजिबल, कैरेक्टर का एनालिसिस हो जाता है। ओके सर, जैसे कि आपने मेरा कल इंग्लिश में एनालिसिस किया, जो मैंने कल लिखा फॉर्मेट वो इंग्लिश में था, तो इंग्लिश के राइट। अलावा और भी लैंग्वेजेस में हो सकता है हाँ, एनालिसिस? एक्चुअली देखिए, एनालिसिस तो किसी भी लैंग्वेज में पॉसिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रोक्स डिफाइन करते हैं आपके कैरेक्टर। ओके। स्ट्रोक्स तो हर पर्टिकुलर मतलब लैंग्वेज में आ जाते हैं, चाहे आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, चाइनीज जापानीज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट हो, उसमें भी आपका एनालिसिस हो सकता है। वो ओके। अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज एनालिसिस करने की किस लैंग्वेज में है। माय ओके। नॉलेज इन पर्टिकुलर is restricted only to analysis of writings which have got ABCD. अब ओके। ABCD किस में होता है? इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इन सब लैंग्वेजेस में ABCD होता है, तो उसमें हम जो एनालिसिस कर सकते हैं वो इन लैंग्वेजेस में ही कर सकते हैं। बट इन जनरल किसी भी लैंग्वेज में एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि स्ट्रोक सब में आ जाते हैं। ओके। तो सर सिग्नेचर पैटर्न्स होते हैं, उसमें भी हाँ, एनालिसिस करना कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली सिग्नेचर जो है, इट हैज नो वैल्यू इन एक्चुअली कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ पीपल। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि सिग्नेचर जो है आप ऊपर कर दो, नीचे कर दो, एक डॉट लगा दो, लाइन लगा दो, उससे आपका इम्प्रूवमेंट होगा लाइफ में। हम्म। वो इट हैज नथिंग एक्चुअली टू डू विद द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ओके। कैरेक्टर एनालिसिस करने के लिए हम लोग रिपीटेशन ऑफ स्ट्रोक्स देखते हैं, कौन ओके। सा स्ट्रोक कितनी बार रिपीट हो रहा है। सिग्नेचर में क्या है, आपके 5 लेटर्स आ जाएंगे, 10 लेटर्स आ जाएंगे, तो उसके अंदर एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। आप समझ लीजिए, अगर सिग्नेचर आप हमको देते हैं विथ योर हैंड राइटिंग, सो यू कैन एनालाइज जस्ट मे बी 0.5% ऑफ योर कैरेक्टर। आपका जब हमने एनालिसिस किया था, आपसे तो सिग्नेचर मंगवाया ही नहीं था हमने। यस सर, यस सर। हाँ। ओके सर, सो माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज कि जो आप जो एनालिसिस होता है उससे क्या मेंटल स्टेट पता चलती है लोगों की? जैसे आपने कहा कि ट्रेड्स तो पता चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता चलता है, लेकिन मेंटल स्टेट पता चलती है उससे? हाँ, मेंटल स्टेट इन द सेंस कि
कौन सा पर्सन किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, फास्ट है, स्लो है, कितनी ग्रास्पिंग एबिलिटी है, और ये सारी चीजें मालूम पड़ती है। और इवन सीरियस ट्रेट्स हैं, जैसे किसी को जेलेसी है या ग्रीड है या धोखाधड़ी, डिसऑनेस्टी के स्ट्रोक्स, ये सारे हैंडराइटिंग में आ जाते हैं। एंड ओके। इवन स्ट्रोक्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन के स्ट्रोक्स भी दिखते हैं। और अगर और भी एक्सट्रीम केस लिया जाए तो सुसाइडल टेंडेंसी के भी स्ट्रोक्स आते हैं हैंडराइटिंग में। ओके। और ओके। इससे निकलने का भी उपाय है, आपको थेरेपी देंगे, आप थेरेपी करिए तो इससे आप निकल भी जाएंगे। श्योर सर। तो सर लास्ट क्वेश्चन इज माइंड कि सर थेरेपी कितने ड्यूरेशन के लिए होती है? जैसे कि कल आपने मुझे सजेस्ट किया था कि दैट आई हैव थोड़ा पोटेंशियल है बट आई लैक कॉन्फिडेंस इन माय पोटेंशियल। दैट इज ट्रू। तो सर मुझे अगर उसे इम्प्रूव करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा, या फिर किसी और इंसान को कुछ और इम्प्रूव करना है तो कितना टाइम लग सकता है? जनरली जो है ये थेरेपी जो होता है वो होता है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ अबाउट 3 वीक्स। तो ओके। उन 3 वीक्स में अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रोक्स की आप कॉन्शियसली चेंज करके प्रैक्टिस करें ओके। तो, और सिर्फ आपको 5 मिनट रोज करना है। आजकल प्रॉब्लम क्या है, लोग डरते हैं कि हम लोग तो लिखते ही नहीं, लिखेंगे कैसे। तो यस कोई सर। डरने की बात नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखते हो डेली रूटीन में तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ 5 मिनट रोज प्रैक्टिस करना है। और 2 से 3 वीक में जब आपको वो चेंजेस आ जाएं तो आप थेरेपी छोड़ दीजिए, फिर फर्दर कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट आपके कोई इंप्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट थेरेपी ले सकते हैं, जिसमें कुछ और स्ट्रोक के चेंजेस बताएंगे। वो भी सिर्फ 5 मिनट आप रोज प्रैक्टिस करिए तो आपको वो चेंजेस 2 से 3 वीक में आ जाएंगे। ओके। सो आई गेस दैट वाज इट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों की अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन्हें मिल गई होगी। एंड ग्राफोथेरेपी इज श्योरली अ न्यू कॉन्सेप्ट बट अ इंटरेस्टिंग वन। थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन तोशनीवाल फॉर ज्वाइनिंग अस। Yeah, thank you so much. Thank you. थैंक यू सर।